Hi guys, welcome to my channel. In this channel we provide the in-depth knowledge of different programming languages which differentiate you with others. In our series of C programming language, today we are going to discuss a very important topic known as storage classes. Let's start. What is a storage class? Storage class means a complete definition of a variable. It specifies four properties of any variable. What is storage class? Storage class means a complete definition of a variable. It specifies four properties of a variable. What are those four properties? Where the variable will store, what will be the default value or the initial value of a variable, what will be the scope, what do you mean by scope, up to which place that variable is visible or accessible, and the fourth one is the life cycle, how much the variable lives or how much the variable lives or the life cycle of a variable. So these are the four properties that we will discuss in every storage class. So there are four storage classes in C language. First one is automatic, second one is static, third one is register, and fourth one is external. So these are the four storage classes available in C language, and for every storage class we will discuss these four properties. Means automatic variables का storage कहाँ होता है, default value क्या होती है, scope क्या होगा और लाइफ साइकिल क्या होगा. सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू स्टैटिक वेरिएबल्स का स्टोरेज क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, स्कोप क्या होगा और लाइफ साइकिल क्या होगा. सेम विद द केस ऑफ रजिस्टर एंड सेम विद द केस ऑफ एक्सटर्नल, एंड एट विच सिचुएशन we will use which storage class, that also we are going to discuss. So try to concentrate. We will start one by one. Fine. First one is static. Now where we will use static storage class, where the variable value is to persist across the function call. Means if you want to persist the value between different function calls, we can use static variables. Now let's try to understand with an example. Here we are having one main function. In main function we are defining one pointer of type integer, int star ptr. What is ptr? Ptr is a pointer to an integer. Then int star fun. What is this? This is a prototype of the function. What is prototype? Prototype is a declaration which defines the return type and the argument of the function. So what we are seeing, int star fun, what it specify कि fun is a user defined function which will receive nothing, but it will return one address of a integer variable. If it will return an address, so we have to receive in pointer. That is why in return type what we are writing int star. Then ptr इक्वल टू फन, अगर वो एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो स्टोर किस में होगा, नो डॉट पॉइंटर्स में, क्योंकि हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि अगर एड्रेस स्टोर करना है तो वी हैव टू डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल, और अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया तो उसके अंदर सिवाय एड्रेस के और कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता. तो व्हेन आई राइट ptr इज इक्वल टू फन, दिस इज अ फंक्शन कॉल, कंट्रोल विल मूव डाउन टू द फन फंक्शन. Here int x is equal to 10, 2 bytes will be allocated with a name x जिसके अंदर 10 स्टोर होगा. रिटर्न एंड ऑफ एक्स, एंड ऑफ एक्स मतलब अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू हमने जैसे आपने लिखा int x, तो व्हाट हैपन, 2 bytes will be allocated in a RAM with a name 10, और यहाँ पे 1000 से लेके 1003 तक. Now when I write it, return and of x, what is return? Return is a keyword whenever encountered inside the function. It takes control back to the calling function with value or without value. So this is an example of with value. So we are returning the address of what? Address of a x variable. X variable के address क्या है? यहाँ पे 1000. यहाँ पे आपका एक ptr बनेगा और इस ptr के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1000 at location number 2000 to 2003. Now problem with this program is as the control goes back to the main function, this variable dies. So this is an example of what? This is an example of dangling pointer. So we are having the address, but at that address no variable is existing. Why? Because this x is a variable which is by default
having automatic storage class, and the life cycle of the automatic storage class is what? Till the control in the block where the variable is defined. जब तक इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल रहेगा तब तक ये x अलाइव रहेगा. एज द कंट्रोल गोज आउट ऑफ दिस ब्लॉक दिस वेरिएबल डाइज. अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे? वी विल डिक्लेयर दिस वेरिएबल विथ static keyword. What is static? Static is a keyword. What is static? Static is a storage class. तो when I write int x equal to 10 की जगह हम क्या लिखेंगे? Static int x. Now what is x here? X is a variable of type integer having static storage class. What is storage class? Storage class defines 4 properties of a variable. वो 4 properties अपनी कौन कौन सी है? What will be the default value? What will be the scope? These are 4. What will be the storage? What will be the default value? What will be the scope? And what will be the life cycle? तो जैसे हमने उसको static लिखा तो static की 4 properties अपन पढ़ेंगे. तो storage in the memory, default value will be 0. You can write equal to 10 or equal to 20, whatever you want to initialize. Scope local to the block in which the variable is defined. स्कोप उसका कहाँ रहेगा? लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड. मीन्स दिस एक्स इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड दिस ब्लॉक. एक्स सिर्फ कहाँ रहेगा? एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दिस ब्लॉक. मतलब फन फंक्शन के अंदर ही एक्स को एक्सेस कर सकते हैं. बट लाइफ साइकिल उसका क्या हो जाएगा? टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इट परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल्स. जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहेगा तब तक ये एक्स आपका क्या रहेगा? अलाइव रहेगा. एज द प्रोग्राम टर्मिनेट्स दिस वेरिएबल डाइज. सिर्फ आप लोगों को क्या लिखना पड़ा यहाँ पे? स्टैटिक. तो स्टैटिक हम कब यूज करेंगे? इफ यू वांट टू परसिस्ट द वैल्यू बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स वी कैन यूज समथिंग नोन एज स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेयर द वेरिएबल वैल्यू इज टू परसिस्ट अक्रॉस द फंक्शन कॉल. जहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट करके रखना है, बचा के रखना है अक्रॉस द फंक्शन कॉल. मीन्स कंट्रोल मूव्स फ्रॉम वन फंक्शन टू वन फंक्शन अनदर फंक्शन. लेकिन आप क्या चाहते हो कि वो वेरिएबल की वैल्यू सेम रहे जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है. तो उस कंडीशन में आप इस वेरिएबल को कैसे डिफाइन करोगे? विथ अ कीवर्ड कॉल्ड स्टैटिक. What is static? Static is a storage class. Storage class define the complete definition of a variable. Complete definition of a variable means where it will store, what will be the default value, what will be the scope or what will be the life cycle. तो static जो storage class है उसकी 4 properties क्या है? Storage will be in the memory. Default value by default if you are writing static int x, तो by default it will be initialized with 0, but you can initialize some value. Scope local to the block in which the variable is defined, or life cycle till the program execute it persists between the function call. It persists the value between the function call. Here you have to write it persists value between function call. Getting my point? So where we will use static, where the variable value is to persist across the function call. नथिंग स्पेशल अबाउट कि स्टैटिक को कहाँ यूज़ करना है, ऑटोमेटिक को कहाँ यूज़ करना है, रजिस्टर को कहाँ यूज़ करना है. These are some properties according to the requirement of the application. A programmer has to decide whether he has to write static or register or automatic or extra. Fine. Next is register. इफ़ द वेरिएबल इज़ यूज फ्रीक्वेंटली, अगर किसी कोई वेरिएबल आपका फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लूप काउंटर्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. void main int x इक्वल टू 0 while x इज लेस देन 100 printf परसेंटेज आई x. अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? x की वैल्यू हो रही है कम से कम 100 टाइम्स मैनिपुलेशन. ठीक है, x प्लस प्लस हो रहा है तो 100 टाइम्स वैल्यू आपकी. अच्छा, ये x कहाँ पे स्टोर है? मेमोरी में स्टोर है. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर x को 0 से 1 करना है, दैट वैल्यू शुड बी ट्रांसफर टू दी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वही वैल्यू 10 से क्या करेगा? 11 करेगा और 11 को वापस फिर कहाँ ला के स्टोर करेगा? वो मेमोरी में. तो जाने आने का टाइम अगर आपको बचाना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट रजिस्टर इंट x. नाउ व्हाट इज रजिस्टर हियर? रजिस्टर इज अ स्टोरेज क्लास.
तो देयर इज समथिंग नोन एज इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। तो मतलब अगर आप रजिस्टर इंट एक्स लिख रहे हो तो व्हाट यू आर टेलिंग टू द कंपाइलर कि इंस्टेड ऑफ आप हमको मेमोरी में मत एलोकेट कीजिए, आप डायरेक्टली हमको कहाँ एलोकेट कर दीजिए, इनसाइड दी सीपीयू रजिस्टर्स। तो उससे क्या होगा कि जाने आने का टाइम बचेगा, तो एग्जीक्यूशन आपका फास्ट हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज इट इज नॉट एन order, it's a request. Request may be accepted or may be rejected. If accepted, 4 bytes will be allocated in the CPU registers. If rejected, so by default it will be allocated in the memory. It's a request. Again, it's an interview question. Register int x, what happens if this variable is not allocated in register? So what will be your answer? It's a request. Request may be accepted or rejected. If accepted, 4 bytes will be allocated in the CPU registers. What are CPU register? It is the internal memory of the CPU which holds the values. तो वो 4 bytes आपके कहाँ allocate हो जाएंगे? CPU registers में. अगर allocate नहीं होंगे, it will allocate in the memory. तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा, and where we will use static register storage class whose value is frequently changing. जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, लाइक लूप काउंटर्स, हियर x की वैल्यू आपकी 100 टाइम्स चेंज हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जाने आने का टाइम बचे, डायरेक्टली सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर अगर 4 बाइट्स मिल जाता है तो वहीं पे वो मैनिपुलेट होता रहेगा और वहीं पे आपका स्टोर होता रहेगा। बट इट्स अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में बी एक्सेप्टेड, में बी रिजेक्टेड, बिकॉज दिस टोटली मेमोरी एलोकेशन इज टेकन केयर बाई whom? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज सिर्फ क्या कर सकता है कि वो एक रिक्वेस्ट भेज सकता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर लर्निंग दिस लैंग्वेज व्हाट यू विल डू, यू विल डेवलप स्मॉल सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर ऑलवेज रन्स अंडर व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अल्टीमेटली मेमोरी एलोकेशन किसका काम है? इट्स ए ड्यूटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? Storage in the CPU registers, default initial value is garbage, scope local to the block in which the variable is defined. तो जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन रहेगा उसी ब्लॉक के अंदर वो एक्सेसिबल होगा, उस ब्लॉक के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। और लाइफ साइकिल टिल द कंट्रोल इज इन द ब्लॉक वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड। तो जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल डिफाइन है, जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर रहेगा वो वेरिएबल अलाइव रहेगा। एज द कंट्रोल गोज आउट ऑफ दिस ब्लॉक, दिस वेरिएबल डाइज। फाइन। तो these are the 4 properties of CPU. These are the 4 properties of the register storage class. Getting my point? Next one is extern. Now, if the variable is required by most of the functions in the program, now till date what we are doing, we are defining different functions. In every function we are defining some variable, but the problem with those variables are that the scope of those variable is local to the block. Let's take an example. In main function, here we are having 3 functions: main, fun1 and fun2. All are having int a, int a, int a. Now this a is not accessible. Now this a is not accessible by the fun function as well as fun2 function. ये दोनों इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. This a is not accessible by main function. This a is not accessible by the fun function, and this a is not accessible by the fun1 function, and this a is not accessible by the main function. Why? The scope of this variable are local to the block in which the variable is defined. क्योंकि ये कहाँ तक accessible होंगे? Local to the block in which the variable is defined. लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल हो जिसको मेन भी एक्सेस कर पाए, fun1 भी एक्सेस कर पाए और fun2 भी एक्सेस कर पाए. तो अब हम क्या करेंगे? We will declare that variable outside the function. अब outside the function ये स्पेस भी है, ये स्पेस भी है, ये स्पेस भी है और ये स्पेस भी है. यहाँ डिफाइन करोगे तो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा, यहाँ डिफाइन करोगे तो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा, यहाँ डिफाइन करोगे तो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा और यहाँ डिफाइन करोगे तो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा. क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन ही क्या है? इफ़ एनी वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन इट बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल. बट सब प्लेसेस का अलग अलग
वैल्यूज़ है। सबसे पहले अपन ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है, int x। नाउ दिस x इज एक्सेसिबल टू मेन एज वेल एज fun1 एज वेल एज fun2। अब x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, int a इक्वल टू 10। a और x को डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। उसका x 1 x प्लस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी आपकी 1। देन वी आर मेकिंग, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर लीजिए, इसके बाद fun1 को भी कॉल कर लीजिए और fun2 को भी कॉल कर लीजिए फ्रॉम दी मेन फंक्शन, ठीक है। तो हम लिख ही देते हैं, काम करते हैं, कन्फ्यूजन का एक ले करना है। यहाँ हम कॉल कर देते हैं fun1 को और यहाँ कॉल कर देते हैं अपन fun2 को। फाइन। तो जैसे हमने fun1 को कॉल किया, व्हाट हैपेंस, कंट्रोल विल मूव डाउन टू दी fun1 फंक्शन। कंट्रोल यहाँ आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और सॉरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, x की वैल्यू पहले 0 से 1 की, 1 किसने किया, मेन फंक्शन ने। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा, a को तो हम डिस्प्ले करना ही रहे, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x प्लस प्लस किया तो x की वैल्यू 2। जैसे अपन ने उसके बाद fun2 को कॉल किया तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी और x की वैल्यू 2 और x प्लस प्लस करोगे तो x की वैल्यू 3। और अगर यहाँ पे फिर अगर अपन printf %i, x कराएंगे तो आउटपुट विल बी 3। तो व्हाट डज इट मीन्स, दिस x इज एक्सेसिबल टू मेन फंक्शन ऑल्सो, fun1 फंक्शन ऑल्सो और fun2 फंक्शन ऑल्सो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि द सिंगल वेरिएबल शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द फंक्शन इनसाइड अ प्रोग्राम। तो हाउ वी कैन अचीव दिस, बाय डिक्लेयरिंग दैट वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल। व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, इफ एनी वेरिएबल is defined outside the function, it becomes a global variable and the scope of the global variable is global. It can be accessible by all the function inside the program. बट अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये x इज एक्सेसिबल टू मेन ऑल्सो, fun1 ऑल्सो और fun2 ऑल्सो। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि मेन उसको एक्सेस ना कर पाए और fun1 और fun2 उसको एक्सेस कर पाए। तब अपन इसको यहाँ ना डिफाइन करके we will remove here and I can write int x here। तो fun1 उसको एक्सेस कर लेगा और fun2 एक्सेस कर रहा है। यू हैव टू रिमूव दिस। अगर दोनों जगह लिखोगे तो क्या एरर आएगा, रीडेफिनेशन रीडिक्लेरेशन एरर। यू कैन नॉट रीडिफाइन अ वेरिएबल ट्वाइस ना। आप एक ही स्कोप के अंदर दो बार वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हो, int x। अब इस x को मेन तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन इस x को fun1 भी एक्सेस कर पाएगा और fun2 भी एक्सेस कर पाएगा। अब आप चाहते हो सिर्फ fun2 एक्सेस करे, तो इसको हटा के यहाँ पे आप int x लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको fun2 एक्सेस कर पाएगा, fun1 भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, मेन फंक्शन भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बाय सीइंग दिस व्हाट वी कैन से कि जिस भी प्लेस पे आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो, अगर यहाँ पे डिफाइन करोगे तो उसके बाद जितने भी फंक्शंस डिफाइन होंगे सब एक्सेस कर लेंगे। अगर यहाँ डिफाइन करोगे उसके बाद जितने फंक्शंस होंगे वो उसको एक्सेस कर लेंगे। अगर यहाँ डिफाइन करोगे तो उसके बाद जितने फंक्शन होंगे वो उसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब बीच में आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, नहीं fun2 को नहीं देना है, अपन को सिर्फ fun1 को देना है। तो अगेन यू हैव टू रिमूव यहाँ से यहाँ, या फिर इसको यहाँ से कट कीजिए और इसके ऊपर पेस्ट कीजिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस, यू डू डिक्लेरेशन एट द लास्ट। सबसे लास्ट में आप क्या लिखे यहाँ पे, int x। अब ये x किसको किसको एक्सेसिबल होगा, किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होगा। जिसको जिसको एक्सेस देना है उसके अंदर आप क्या लिखिए, extern int i, sorry extern int x। तो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो जैसे वो x को डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा तो वी आर टेलिंग द कंपाइलर कि दिस x इज अ एक्सटर्न वेरिएबल, गो एंड फाइंड इट आउट, ठीक है। तो व्हाट रूल सेज कि ग्लोबल वेरिएबल जहाँ पे भी डिफाइन होगा उसके नीचे जितने भी फंक्शंस डिफाइन होंगे दे कैन एक्सेस दैट वेरिएबल, उसके ऊपर जितने भी फंक्शंस डिफाइन होंगे दे कैन नॉट एक्सेस दैट वेरिएबल। तो व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस, राइट दैट ग्लोबल वेरिएबल एट द लास्ट ऑफ ऑल द फंक्शन। सबसे लास्ट में उसको डिक्लेयर कर लीजिए।
जिस जिस फंक्शन को एक्सेस देना है उसके अंदर क्या लिख लीजिए, एक्सटर्न इंट एक्स। तो अब क्या होगा, fun2 उसको एक्सेस कर लेगा। अब रिक्वायरमेंट आई कि भाई अब मेरे को मेन को देना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, एक्सटर्न इंट x. Now this x is accessible to main function as well as fun2 function, but fun1 cannot access this x. ठीक है, go through this, any doubt you can ask me. तो when we will use extern, if the variable is required by most of the function in the program, so we will declare that variable with a extern storage class or a global variable. ठीक है, storage in the memory, default value, by default it will be initialized with 0, but you can write here int x is equal to 20, then it will be initialized with 20. Then scope, global means it is accessible to the complete program, any function can access this variable. Life cycle till the program executes, क्योंकि पूरे प्रोग्राम पूरे फंक्शंस को किसी को भी एक्सेस करना है तो उसको तो लाइव कब तक रहना पड़ेगा, जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। गेटिंग माई पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इज अ स्टोरेज क्लास बट ऑटो इज अ कीवर्ड। इसको कब यूज करेंगे, जैसे अभी अपन ने 3 एग्जाम्पल लिए। स्टैटिक को कब यूज करेंगे, इफ यू वांट टू परसिस्ट द वैल्यू बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल वी विल यूज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। रजिस्टर को क्यों कब यूज करेंगे, इफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग वी विल डिक्लेयर दैट वेरिएबल विद अ रजिस्टर स्टोरेज क्लास। एंड व्हेन वी विल डिक्लेयर ग्लोबल or extern when that value is accessible by all the function inside the program, then we will declare that variable as a external storage class। और automatic कब यूज करेंगे, जब कोई भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप extern यूज नहीं कर रहे हो, static यूज नहीं कर रहे हो, register यूज नहीं कर रहे हो, तो by default it is automatic। मीन्स int x लिखिए या auto int x लिखिए, one or the same thing। Getting my point? Auto is a keyword, static is a keyword, register is a keyword, extern is a keyword। ठीक है, आप int x लिखिए या auto int x लिखिए, one or the same thing। मतलब अगर आप auto int x लिख रहे हो तो भी मतलब सेम है, अगर int x लिख रहे हो तो by default auto। मतलब एक चीज मान के रखिए कि विदाउट अ स्टोरेज क्लास अ वेरिएबल कैनॉट एग्जिस्ट। अगर वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई स्टोरेज क्लास होगी, वो कोई ना कोई कौन सी होगी, चारों में से, या तो एक्सटर्न होगा, या तो एक्सटर्न होगा, या तो स्टैटिक होगा, या तो रजिस्टर होगा, या तो फिर ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, अगर आप एक्सप्लिसिटली कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। तो व्हेन आई राइट void main int x, it is treated as auto int x, printf %i x, output will be garbage value। now what do you mean by garbage value? what do you mean by garbage? garbage मतलब कचरा। कचरा मतलब जो हमारे लिए कचरा है दैट इज गार्बेज फॉर अस, लेकिन वो किसी के लिए कोई अच्छी वैल्यू हो सकती है। फाइन ना। अगर एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का एग्जांपल लें तो चिकन इज अ गार्बेज फॉर अ वेजिटेरियन गाय, बट इट इज नॉट अ गार्बेज फॉर अ नॉन वेजिटेरियन गाय। गेटिंग माई पॉइंट? तो गार्बेज वैल्यू मीन्स जो वैल्यू हमारे काम की नहीं है दैट इज अ गार्बेज वैल्यू फॉर अस। फाइन। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या होंगी? First is storage in the memory, default value will be garbage, scope local to the block in which the variable is defined, means accessible कहाँ तक होगा, जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल डिफाइन है, और लाइफ साइकिल टिल द कंट्रोल इज इन द ब्लॉक वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड। तो जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर रहेगा तब तक वो वेरिएबल अलाइव रहेगा। एज द कंट्रोल गोज आउट ऑफ द ब्लॉक दिस वेरिएबल डाइज। तो दिस आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ automatic storage class। Getting my point? If any doubt you can ask me, go through the complete lecture, this is very important, this is small things that, but it's very important for programming। Fine। So what is storage class? If somebody asks in the interview what is storage class means a complete definition of a variable। It specifies 4 properties of a variable, ki where the variable will be stored, what will be the default value or initial value of a variable, what will be the scope of a variable, and how much the variable lives। Getting my point? 4 properties of every storage class,
How many storage classes are available in C? There are 4 storage classes. First one is automatic, second one is static, third one is register and fourth one is external. एक्सटर्नल बोल लीजिए, एक्सटर्न बोल लीजिए, रिमूव दिस एयर. ठीक है. ऑटोमेटिक के लिए कीवर्ड कौन सा है? ऑटो. फाइन. स्टैटिक के लिए स्टैटिक, रजिस्टर के लिए रजिस्टर, and for extern it is extern only. This register is what? Register is a request. This is also an interview question. When I write register int I, will this 4 bytes will be allocated in CPU register? The answer will be, it depends upon the operating system, because it's a request from the program to the operating system कि please allocate 4 bytes for this variable in CPU registers. Why? Because the value of this variable is frequently changing and I don't want to come and go again and again. Request may be accepted, may be rejected. If accepted, 2 bytes will be allocated in CPU registers. If rejected, the 2 bytes will be allocated in RAM or memory. Okay, with this I should stop this lecture. We will meet in next class. Thank you.